Good morning, students. In previous video, we discussed few types of elementary function, their domain and range like modulus x, signum x, greatest integer x, etc. Today we are going to discuss types of functions. So first we'll be doing 1 or injective function. A function f from a to b is said to be 1 or injective if distinct elements of A means preimages. Distinct preimages or distinct elements of A have distinct images in B. So x1, x2, this means if we have two different elements in set A, they must have different images in set B. Or we can write this way, x1 not equal to x2 means we have two distinct preimages, implies fx1 is not equal to fx2. For all x1, x2 belongs to A. इसका मतलब हो गया distinct images, preimages have distinct images. Or you can write like this also, f of x1 is equal to f of x2 implies x1 is equal to x2 for all x1, x2 in A. इसका मतलब हो गया अगर दो इमेजेस इक्वल हैं तो उनकी प्री इमेजेस भी इक्वल होंगी। डायग्राम से हम इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। लेट अस हैव टू सेट्स A and B. Set A में एलिमेंट्स x1, x2, x3. There is another set B having elements y1, y2, y3, y4. Let us have f is a function from A to B which associates x1 to y1, x2 to y2 and x3 to y3. Here you can see that distinct elements of A are having distinct images in B. कोई भी दो different elements set A के उनकी सेम इमेज नहीं है, कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए की सेम इमेज नहीं है। अगर ऐसा है तो फंक्शन 1 होगा। f is here 1 function. On the other hand, if we have this type of function from A to B, x1, x2, x3, y1, y2, y3, y4, and suppose we have another function f from A to B in which x1 is mapped to y1, x2 to y2 and x3 also to y2. Here we have distinct preimages x2 and x3 are having same image y2. तो यहाँ पे f of x2 is equal to f of x3, दोनों ही y2 हैं, but x2 is not equal to x3. तो जब भी ऐसा आ जाए कि f of some x is equal to f of some another x, but two values of x are not same, then function is not 1. So here f is not 1, or we may say f is many to 1.
अब हम देखेंगे ग्राफिकली कैसे पता करेंगे कि कोई फंक्शन 1 है या नहीं है। उसको हमने नाम दिया है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। सपोज आपके पास एक ग्राफ है, ये हमने कल पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, graph of parabola. This is the graph of y equal to x square or fx equal to x square. अगर मैं यहाँ पे -2 और 2 पे इसकी वैल्यू निकालता हूँ तो दोनों पे वैल्यू 4 आती है। -2 का भी स्क्वायर 4 है, 2 का भी स्क्वायर 4 है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अगर ये ज्वाइन कर दें तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को दो जगह कट कर रही है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है, तो उन दोनों पॉइंट पे प्री इमेजेस तो डिस्टिंक्ट है लेकिन इमेजेस सेम है। इमेजेस क्या है 4 और प्री इमेजेस क्या है -2 और 2। तो यहाँ डिस्टिंक्ट प्री इमेजेस -2 और 2 की सेम इमेज 4 हो गई। तो ग्राफ को देखते ही पता लग जाएगा अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी तो दैट फंक्शन इज नॉट 1 तो f of -2 is equal to f of 2 but -2 is not equal to 2, तो therefore f is not 1 तो ये तो हम वैसे प्रूव करते हैं, लेकिन ग्राफिकली करना हो तो ये 1 मार्क में अगर आता है चेक करने को कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉट 1 तो आप ग्राफ को देख लेना। तो ग्राफिकली इफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन meet the graph at one point only, then function is 1 otherwise many to 1। एक से ज्यादा पे कट करेगी तो many to 1। हम एक और ग्राफ बना सकते हैं। ये एक्स क्यूब का ग्राफ पड़ा था। यहाँ कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ को वो एक ही पॉइंट पे कट करेगी, तो ऐसा फंक्शन 1 होता है। Now let us take few questions on proving a function is 1 Prove that a function f from R to R defined as f of x equal to 3x plus 5 is 1 Let us write its solution. So here f of x is equal to 3x plus 5। तो हम क्या करते हैं कि दो x1 और x2 हम डोमेन में लेते हैं। x1 x2 डोमेन और रेंज यहाँ दोनों आ रहे हैं, तो हमने x1 x2 बिलोंग्स टू R लिया such that f of x1 is equal to f of x2। This implies 3x1 plus 5 is equal to 3x2 plus 5। यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यू डाल दी, इससे हमारे पास आ गया 3x1 is equal to 3x2। So this implies x1 is equal to x2। So therefore what we are getting, f of x1 is equal to f of x2 implies x1 is equal to x2
not only for few values but for all x1 and x2 belongs to domain. Therefore f is 1 function or 1 function और f is इंजेक्टिव। तो दोनों नाम याद होने चाहिए। कई बार ये आपने 1 पढ़ा हो, एग्जाम में इंजेक्टिव आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इंजेक्टिव का मतलब 1 है। लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट f from R to R defined as f of x equal to mod x is not 1 अब हमने प्रीवियस वीडियो में इसका ग्राफ देखा था। मॉड एक्स का ग्राफ इस टाइप का होता है। इट इज अ वी शेप्ड ग्राफ। तो ग्राफ में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी, तो इट इज नॉट ए 1 फंक्शन। लेकिन आपको ग्राफ से आइडिया लेना है, आपको लिख के करना पड़ेगा। तो जब भी हम नॉट प्रूव करेंगे तो हम एग्जांपल लेंगे। तो आप कोई भी दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज x के ऐसे ढूंढ लीजिए जिन पे fx की वैल्यू सेम आ रही है। तो fx क्या है यहाँ पे? मॉड x है। तो जब भी आप इस टाइप के पॉइंट लेंगे, f of 2 mod 2 is 2, f of minus 2 2, तो जब भी आप प्लस माइनस a टाइप के पॉइंट लेंगे तो दोनों पे f सेम आएगा। तो वी कैन से f of 2 is equal to f of minus 2, but 2 is not equal to minus 2. So therefore f is not 1 f is not 1 क्यों 1 नहीं है? क्योंकि ये हमने पढ़ा था कि अगर डिस्टिंक्ट इमेज प्री इमेजेस हैं तो उनकी इमेजेस डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ डिस्टिंक्ट प्री इमेजेस 2 और -2 की इमेजेस सेम आ रही है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से भी पता लग रहा है और हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उससे भी पता लग रहा है। तो इट इज नॉट 1 इसके बाद एक और टाइप का फंक्शन होता है ऑन टू फंक्शन। क्योंकि हम पहले दोनों डेफिनेशन पढ़ लेंगे, इसके बाद क्वेश्चन मिक्स्ड आते हैं। शो दैट फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू, फंक्शन इज 1 बट नॉट ऑन टू, एटसेट्रा। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। फंक्शन f फ्रॉम सेट A टू सेट B इज सेड टू बी ऑन टू, और इसको हम सर्जेक्टिव भी कहते हैं, ऑन टू और सर्जेक्टिव इफ फॉर ईच y belongs to B, मतलब for each image in B there is some x in A such that f of x is y। तो इसका मतलब हुआ बी सेट में जो भी एलिमेंट है वो किसी ना किसी की इमेज होना चाहिए। तो इसे हम डायग्राम से समझेंगे तो ये हमें ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो पहले हम एक फंक्शन लेते हैं जो ऑन टू है, उसका हम एक डायग्राम बनाते हैं। वी हैव ए फंक्शन f फ्रॉम A टू B। सपोज A में एलिमेंट्स हैं x1, x2, x3, B में एलिमेंट्स हैं मेरे पास y1, y2, एंड सपोज वी हैव x1 मैप्ड विद x2 and y1, x2 with y1 and x3 is matched to y2. तो here y1 belongs to B। y1 B में एक एलिमेंट है। We have
x1 and x2 belongs to A such that f of x1 और f of x2 दोनों ही y1 के इक्वल हैं. Similarly, y2 is in B. For y2 in B, we have x3 in A such that f of x3 is y. तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हम अगर कोई भी एलिमेंट y b में ले रहे हैं वो किसी ना किसी का f of x है. तो y1 is image of x1 and x2, y2 is image of x3. तो अगर कोई भी y सेट b का किसी ना किसी x इन a की इमेज होगा तो वो फंक्शन ऑन टू होगा. हर y जो b में है किसी x की इमेज होना चाहिए. तो अगर y इक्वल टू fx आ रहा है फॉर सम x इन a फॉर ईच y इन b, then function is function is on to. तो एक ग्राफ लेते हैं, डायग्राम लेते हैं जो ऑन टू नहीं है तो डिफरेंस क्लियर हो जाएगा. दिस इज सेट A, दिस इज सेट B, x1 x2 x3 y1 y2 y3. We have f from A to B so that x1 goes to x2, x2 to y2, x3 to y2. Here we have y3 in B. For y3 in B, there is no x in A such that f of x is y3. y3 ना तो f of x1 है क्योंकि f of x1 क्या है y1, तो y3 ना तो f of x1 है, ना f of x2 है, ना f of x3 है. तो y is not f of x for any x. That is, y3 is not f of x for any x in A. तो जब भी ऐसा हो कि कोई एक इमेज, कोई भी एक एलिमेंट b का किसी की इमेज ना हो तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा. तो f is not on to, not on to. तो यहाँ पे और क्या पता लग रहा है, यहाँ और क्या पता लग रहा है कि रेंज तो ये y1 y2 और कोडोमेन B है तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन. और यहाँ पे देखेंगे तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन आ रही है B सेट के इक्वल. So we can say function f from A to B is on to if range of the function is कोडोमेन. तो अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल होगी तो हमारा फंक्शन जो है ऑन टू हो जाएगा. अब क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन, शो दैट f from R to R defined as f of x is equal to x square is not on to. तो यहाँ दो तरीके हैं करने के. एक तो तरीका है कि आप इसको कोडोमेन वाले कंसेप्ट से कर दीजिए. f of x क्या है, x square. As we know that x square is greater than equal to 0 for all x in R. जो भी x डोमेन में है तो उसके लिए x square greater than equal to 0 means f of x is greater than equal to 0. तो f of x greater than equal to 0 का मतलब रेंज, f of x की वैल्यू से रेंज आती है. रेंज हो गई 0 इंक्लूडेड टू इन्फिनिटी. और कोडोमेन R है, कोडोमेन यहाँ पे R है तो नॉट इक्वल टू कोडोमेन. तो देयरफॉर f is not onto
means not surjective. और आप एक यहाँ पे y ढूंढ सकते हैं जो f of x ना हो, किसी भी x का जो a में है। तो a यहाँ पे R सेट है और b भी R है। तो लेट अस से फॉर y इक्वल टू -2 इन R। ध्यान रखो कि दोनों R2 R होते हैं, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है। तो हम y को हमेशा सेकंड सेट में लेते हैं कोडोमेन में। तो फॉर y इन -2 इन R we do not have x in domain, x belongs to R, that is domain, such that x square is equal to -2। x square किसी का भी -2 नहीं होगा, और f of x is -2 means y। तो हमारे पास अगर मैं fx इक्वल टू y नहीं आ पा रहा किस y इक्वल टू -2 के लिए, y इक्वल टू -2 के लिए कोई भी x नहीं मिल रहा कि हमारे पास x स्क्वायर -2 आ जाए, मतलब कि f of x y आ जाए। तो f इज नॉट ऑन Q। अब इसे आप ग्राफ से भी देख सकते। ग्राफ से आपको आइडिया लगाना है, और 1 मार्कर के क्वेश्चन है तो करना है, नहीं तो आपको लिख के ही करना है। तो यहां भी पता लग रहा है कि रेंज है 0 to infinity, तो नॉट ऑन टू। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन शो दैट a function f from R to R defined as f of x equal to x cube plus 1 is onto। तो यहाँ हमें onto शो करना है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो x क्यूब का जो हमने ग्राफ बनाया था वो ऐसे था, y x origin, दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इसको सारे पॉइंट को एक एक यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो आपके पास इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। तो देखेंगे कि इसकी रेंज जो है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दैट इज R है, वो कोडोमेन के इक्वल है। लेकिन मैंने बताया आईडी के लिए हमें लिख के प्रूव करना पड़ेगा। We have f of x is x cube plus 1। तो जितने भी हम ऑन टू प्रूव करने के क्वेश्चन है उसमें हम y को लेते हैं कोडोमेन में, y बिलोंग्स टू R, दैट इज कोडोमेन, और हम सॉल्व करते हैं fx इक्वल टू y को। तो अगर इसको सॉल्व करके मेरा x जो आएगा वो सेट A में आ गया, यानी कि कोडोमेन यानी कि डोमेन में आ गया, तो हमारा फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। तो fx इक्वल टू y लेना है, x को y की टर्म में निकालो और शो करो x डोमेन में है। तो f ऑफ x इज x क्यूब प्लस 1, तो x क्यूब इज y माइनस 1, तो x इज y माइनस 1 का क्यूब रूट। और हमने वीडियो में पढ़ा था कि क्यूब रूट फंक्शन की डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होती है, यानी कि y कुछ भी होगा तो y माइनस 1 जो है उसका क्यूब रूट आ जाएगा। y बिलोंग्स टू R, therefore y minus 1 belongs to R। तो दिस implies y माइनस 1 का जो क्यूब रूट है, रियल नंबर का क्यूब रूट एक रियल नंबर होता है। So this x will belong to R। So we have for each y in set B
means R here, that is codomain. There is x equal to this, there is x equal to y minus 1 e power 1 by 3 in set A, means R here, such that f of x equal to y. Therefore, f is onto और सर्जेक्टिव। तो ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, आप y को कोडोमेन में लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू वाई को सॉल्व करेंगे, x को y की टर्म में फाइंड आउट करेंगे। जो x y की टर्म में आपने फाइंड आउट किया है वो अगर डोमेन में आता है फॉर ईच पाई इन कोडोमेन, तो आपका फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम 1 और ऑन टू के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, शो दैट फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू, शो दैट f from a to b is neither 1 nor on to, show that f from a to b is 1 but not on to, show that f from a to b is not 1 but on to. So we'll be doing question of this type in next video.